Greetings students, how are you all? Today I again welcome you in your online class. Today we are going to start our new chapter of grammar, subject verb agreement. Subject verb agreement is a very important topic for you, as you will come to know which verb is to be used. आप बचपन से इसका थोड़ा पार्ट हम करते आए हैं. जैसे आपको पहले इज एम आर सिखाया गया कि इस कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं. फिर आपको हैज, हैव, वाज, वर. इसी तरह से इस टॉपिक को और ज्यादा एलाबोरेट करके हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एज द नेम सजेस्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं. मीन्स अगर टीचर है तो हैज यूज करते हैं, टीचर्स के साथ हैव यूज करते हैं. लेटर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. बट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट यू ऑल नो. मैंने आपको पिछले जो सेंटेंस का चैप्टर था उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट, अबाउट whom वी आर टॉकिंग इन द सेंटेंस. हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है आपके सब्जेक्ट. एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, और जो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ प्रेडिकेट. सो वर्ब इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. व्हाट द वर्ब टेल्स अस. आपके सामने बेटा एक छोटी सी पिक्चर है. यू कैन सी वॉक, हैंग, स्टैंड, पुल, थ्रो, पुश, जंप. These are actions. So all these are actions. Actions means the work we are doing. Right now I am explaining. You are listening. These are verbs. हम जो भी काम करते हैं वो क्या है? Verb. A verb is a word that tells something about a person or a thing. ये किसके बारे में बताता है? Person या thing के बारे में. It is used to describe an action. Action, जो भी काम हो रहा है. अभी आप सुन रहे हो, that is verb. मैं बोल रही हूं, verb. इसके बाद आप नोटबुक में नोट डाउन करोगे, राइट करोगे, verb. Then you will read it, verb. So all these are verb because they are the action words, that what action is going on. So verbs are also known as action words. जैसे noun को हम naming words कहते हैं ना, ऐसे ही verb हमारे क्या है? Action words. Now look at the sentence. He works at a bank. First of all, आप पहले ये आइडेंटिफाई करो बेटा, what is the subject in this sentence? He works at a bank. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? He के बारे में. तो he हमारा क्या हो गया? Subject. और he क्या करता है? Works. काम करता है. तो this works is a verb. Next. I read an interesting story. तो what is the subject? काम कौन कर रहा है इसमें? I. And what I is doing? Reading. Read. That is a verb. So I hope you all have understood the meaning of verb. Now next. Now after it comes to our main topic, that is subject verb agreement. The verb must agree with the subject in person and number. This is the definition of subject verb agreement. The verb must agree. Verb को किसके साथ agree होना चाहिए? Subject के साथ. In person and in number. Like he writes a letter. तो he is your subject. He is subject. And he is singular. He is singular. तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es. सेकेंड, they write a letter. सो मैंने इसमें he को किससे कन्वर्ट कर दिया? they से. But what the difference become? He was singular and they is plural. तो अब हम प्लूरल के साथ क्या वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. Plural verb means verbs first
form. Understood? Now, let us understand it with the help of some more examples. The dog chases the cat. आप dog देख सकते हैं, सिंगुलर नंबर है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर ही हमने वर्ब यूज किया है. बट इन द प्लूरल, द डॉग्स chase the cat. Now dogs, it become plural, so our verb will also become plural. A dog is a faithful animal. Dog क्या है, एक faithful animal, is. Okay? A dog is a faithful animal. Now you can see a dog. It is a singular subject. तो हमने क्या यूज किया, is. Next, Jenny and Rita are playing together. You can see Jenny and Rita. It became plural. So our verb is also comes plural. It will come are. Singular के साथ is, plural के साथ are. So like that, in the next you can see 2 dogs are. 1 dog is. So in this way we are going to do subject verb agreement. Now we are having some rules. So let us recall these rules. Number 1, if the subject is singular in number, use singular verb. If the subject is plural in number, use plural verb. जैसे आप पीछे देख सकते हो, 2 dogs. 2 dogs, they are plural, so verb will also plural, are. 1 dog is singular, so the verb is also singular, is. Now, second, if 2 or more subjects are connected by and, they take a verb in the plural form. अब आपने देखा इसमें 2, नेक्स्ट सेंटेंस, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. आप देख सकते हैं इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, राम और श्याम. इंडिविजुअली दे आर सिंगुलर, बट व्हेन दे जॉइन विद द हेल्प ऑफ एंड, वैसे तो राम और श्याम सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बट जब हमने इनको एंड की हेल्प से जोड़ दिया तो ये हमारे क्या बन गए, प्लूरल. तो हमने क्या वर्ब यूज किया, आर. अगर राम सिंगुलर, एक सिर्फ राम की बात होती तो हम इज यूज करते, या श्याम की बात होती तो भी हम इज यूज करते, बट इन दोनों को हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या बन गए, प्लूरल. तो इट बिकम्स आर. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. इफ 2 सब्जेक्ट्स आर एज रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया, देन वर्ब इज सिंगुलर. अगर दोनों सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करें, जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड, राइस एंड करी. इस तरह से जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं बट एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज. नाउ रूल नंबर 3, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाय ईच, एवरी, यूज द वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म. ईच बॉय, एवरी, जहां भी आपका जो सेंटेंस, अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी यूज किया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म. रूल नंबर 4, 2 or more singular subjects connected by either or neither nor. अगर either or या neither nor से हमने अगर आपके सेंटेंस में यूज होता है तो वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा. लाइक यू कैन सी, इधर यू और योर ब्रदर was, आप देख रहे हैं, was, इट इज अ सिंगुलर वर्ब. एब्सेंट yesterday. ओके, बट अगेन एन एक्सेप्शन, अगर उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यू एंड योर ब्रदर, दोनों ही सिंगुलर हैं, हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया. बट अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल, तो वर्ब हमारा बेटा प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो सेकेंड सब्जेक्ट के साथ ही
वर्कआउट करेगा। जैसे इधर रोनित और हिज फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो बेटा, फ्रेंड्स इट्स अ प्लूरल, तो हमने क्या यूज किया, हैव। अगर यहाँ पे फ्रेंड होता हम यूज करते हैज, बिकॉज बोथ आर सिंगुलर, बट इन दिस सेंटेंस द सेकंड वन इज प्लूरल, so it will become have to clean up the mess. Understand? Yes. Now next sentence. Now next rule. A collective noun takes a singular verb. अगर हम collective noun की बात करते हैं, collective noun मैंने आपको noun में समझाया था ना बेटा, collective noun when a group is given a name, जब हम एक group को एक name देते हैं, जैसे बहुत सारे soldiers क्या बन गए हमारी, आर्मी, बहुत सारे आप प्यारे प्यारे बच्चे हमारे क्या बन गए, क्लास, तो ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो इनके साथ हमारा कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। A litter of kittens was born in the shelter. Okay, was, but एक कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, बट ये प्लूरल वर्ब भी यूज करता है कब, जब इंडिविजुअल्स को हम सेपरेटली थॉट करते हैं, ना कि कलेक्टिवली। जब हम, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, जब हम उन्हें एक ही आइडिया को ना रिप्रेजेंट करके उन्हें हम सेपरेटली करते हैं, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर इशू। अब देखो ये कमेटी है, कमेटी मतलब वैसे तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है, बट दे आर डिवाइडेड, अब वो डिवाइड हो गए, तो अब हम इन्हें एक कलेक्टिवली नहीं ले रहे हैं, अब हम इन्हें सेपरेटली ले रहे हैं। ओके, सो तब हम यूज करते हैं जब हमारा जो कलेक्टिव नाउन है that is thought as separately, जब उन्हें अलग अलग, जब वो सेपरेटली हम बात करते हैं तो हम लेते हैं प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, सब नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स जो प्लूरल तो होते हैं फॉर्म में बट सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आप जो मैथ्स बोलते हैं ना बेटा, मैथ्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वैसे तो उसमें एस लगा हुआ है, बट इट इज नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर। एक ही सब्जेक्ट है ना आपके पास, मैथमेटिक्स की 4-5 बुक्स थोड़ी ना होती हैं, एक ही बुक होती है। इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ। जब हम पेयर यूज करते हैं ना, चाहे वो सीजर्स हैं, शूज हैं, ग्लव्स, ट्राउजर्स, हमेशा बेटा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स तो प्लूरल है बट हमने यूज किया अ पेयर ऑफ, इज आएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट टेकन एज अ होल, द वर्ब इज जनरली इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे 2000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, ये 2000 रुपीज एक अमाउंट है। ऐसे ही हम 2 लीटर्स, या हम इसमें यूज कर सकते हैं 5 किलोमीटर्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस, तो इस तरह से हम इसमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। Nouns such as clothing, food, furniture, stationery are singular. तो ये हमेशा क्या लेते हैं, singular verb. I hope you all have understood this video. After it, I am going to share all these rules in the form of your PDF format. What you have to do? You have to write down all these rules in your notebook and try to do the exercises. I will share the answer of exercises later on. Thank you. Have a nice day.